السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ذات کی مردم شماری پر پابندی لگانے سے سپریم کورٹ کا انکار۔ نئی دہلی میں بہار ذات کی مردم شماری پر سپریم کورٹ کے جسٹس سنجیو کھنہ اور ایس وی این بھٹی کے بنچ نے کہا کہ ہم ریاستی حکومت یا کسی بھی حکومت کو فیصلہ لینے سے نہیں روک سکتے۔ سپریم کورٹ نے اس جمعہ کو بہار حکومت کو ریاست میں ذات کے سروے کے مزید اعداد و شمار شائع کرنے سے روکنے کو انکار کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ ہم اس مقام پر نہیں رک رہے ہیں۔ ہم ریاستی حکومت یا کسی حکومت کو فیصلہ لینے سے نہیں روک سکتے، یہ غلط ہوگا۔ عدالت نے کہا کہ ذات پر مبنی سروے کے اعداد و شمار کے حوالے سے کسی بھی معاملے پر غور کیا جائے گا۔ مبین احمد اور مسعود احمد کی بہن سے شادی کرنے والے ہندو نوجوان کے قتل کیس میں مبین احمد اور مسعود احمد کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ گزشتہ سال حیدرآباد میں ہوا تھا یہ قتل۔ حیدرآباد شہر کے سرور نگر علاقے میں 25 سالہ ہندو نوجوان پر اس کی مسلم بیوی کے بھائی اور اس کے دوست نے لوہے کی راڈ اور چاقو سے حملہ کرتے ہوئے سرِ عام اس کا قتل کر دیا تھا اور آج عدالت نے دونوں ملزمین کو عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ سید مبین احمد اپنی بہن اشرین سلطانہ کی ہندو نوجوان ناگراجو کے ساتھ شادی کے خلاف تھا اور انہوں نے اسے وارننگ بھی دی تھی۔ یہ واقعہ گزشتہ سال 4 مئی کی رات حیدرآباد کے سرور نگر میں اس وقت پیش آیا جب متاثرہ نوجوان بی ناگراجو اپنی بیوی اشرین سلطانہ کے ساتھ موٹر سائیکل پر جا رہا تھا۔ اسکوٹر پر سوار حملہ آور سید مبین احمد اور محمد مسعود احمد نے ان دونوں کو سڑک پر روکا اور ناگراجو پر پہلے لوہے کی راڈ اور پھر چاقو سے حملہ کیا، جس کی وجہ سے موقع پر ہی اس کی موت ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ پولیس نے اسی وقت دونوں افراد کو گرفتار کر لیا تھا اور آج رنگا ریڈی کی ضلع عدالت نے دونوں ملزمین کو عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ پرینکا گاندھی کی 13 اکتوبر سے تلنگانہ میں 3 روزہ بس یاترا۔ کانگریس کی انتخابی مہم کا آغاز۔ روڈ میپ کو آج قطعیت۔ قائدین میں اتحاد کا مظاہرہ اہم مقصد۔ کانگریس اسکریننگ کمیٹی میں محمد علی شبیر ہوئے شامل۔ تلنگانہ میں کانگریس کی انتخابی مہم کا آغاز جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی کی بس یاترا سے ہوگا، جس کا آغاز 13 اکتوبر کو متوقع ہے۔ کانگریس ہائی کمان نے تلنگانہ کی انتخابی مہم کی ذمہ داری پرینکا گاندھی کو سونپنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ کیڈر میں جوش و خروش پیدا ہو اور عوام کو کانگریس سے قریب کیا جا سکے۔ صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈی و جنرل سیکریٹری انچارج مانک راؤ ٹھاکرے نے صدر کانگریس ملکارجن کھڑگے سے ملاقات کر کے 13 اکتوبر سے بس یاترا کے آغاز کی منظوری حاصل کر لی ہے۔ پرینکا گاندھی 3 دن تک بس یاترا میں شریک رہیں گی، جس کے تحت 50 سے زائد اسمبلی حلقوں کا احاطہ کیا جائے گا۔ بس میں تلنگانہ کے تمام سینئر قائدین موجود رہیں گے۔ ذرائع کے مطابق ریونت ریڈی و مانک راؤ ٹھاکرے آج ہفتے کو پرینکا گاندھی سے ملاقات کریں گے، جس میں روڈ میپ کو قطعیت دی جائے گی۔ پرینکا گاندھی سے ملاقات کے بعد بس یاترا کا شیڈیول جاری کیا جائے گا۔ ہائی کمان نے 2 مراحل کی بس یاترا کا منصوبہ بنایا ہے، جس میں تمام 119 اسمبلی حلقہ جات کا احاطہ کیا جائے گا۔ ممبئی کی ایک عمارت میں بھیانک آگ لگنے کا واقعہ۔ 7 لوگ زندہ جل کر ہلاک ہوئے، 40 لوگ زخمی۔ ملک کی معاشی دارالحکومت ممبئی کے گڑگاؤں میں زبردست آگ لگ گئی۔ جمعہ کی صبح تقریباً 3 بجے گڑگاؤں میں ایک 7 منزلہ عمارت میں آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں 7 افراد زندہ جل گئے، مزید 40 افراد زخمی ہوئے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں موقع پر پہنچ گئی۔ آگ میں پھنسے افراد کو نکالنے کے لیے امدادی کارروائیاں کی گئی۔ زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں پر ان کا علاج کیا جا رہا ہے۔ بتا دیں کہ زخمیوں میں 12 مرد اور 28 خواتین شامل ہیں۔ حکام نے بتایا ہے کہ ان میں سے 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ حادثے کی وجوہات تاحال معلوم نہیں ہو سکے ہیں۔ اسی دوران آگ میں کئی 2 پہیے والی گاڑیاں اور کاریں بھی جل گئی ہیں۔ اس کے احاطے میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور تفتیش جاری ہے۔ شام کے ملٹری اکیڈمی پر گریجویشن ڈے کے دوران ڈرون حملہ، 100 فوجی ہوئے ہلاک، 200 سے زائد ہوئے زخمی۔
मुल्क शाम में दहशतगर्दों ने ड्रोन हमले में मिलिट्री एकेडमी को निशाना बनाया। इस हमले में 100 के करीब जवान शहीद हो गए। मजीद 200 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। शाम के शहर हमस में वाक़े मिलिट्री कॉलेज में ग्रेजुएशन डे की तकरीब के दौरान जवान फौजी तरबियत मुकम्मल करने के बाद ड्यूटी पर रुजू होने वाले थे कि दहशतगर्दों के ड्रोन हमले में जाँ बहक हो गए। शामी फौजी ने इस ड्रोन हमले का इल्जाम मसलह दहशतगर्द तंजीमों पर लगाया है। शामी हुकूमत ने इस वाक़े पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। मरने वालों के खानदानों से ताज़ियत का इजहार किया गया। शामी हुकूमत ने कहा कि इस वाक़े में हिलाकतों में इजाफे का खदशा है। सुपर पावर अमेरिका और रूस शाम में ड्रोन हमलों पर संजीदा हो गए हैं। उन्होंने ऐलान किया कि वो इस हमले में शाम की हिमायत करेंगे। मिलिट्री एकेडमी पर दहशतगर्दों के हमले के बाद महकमा कौमी दिफा के हुकाम को अलर्ट कर दिया गया। इस हमले के पीछे किसका हाथ है, इसकी तहकीकात जारी है। बीआरएस के रुकने कानून साज काउंसिल नारायण रेड्डी कांग्रेस पार्टी में हुए शामिल। तेलंगाना की हुक्मरान जमात बीआरएस के रुकने कानून साज काउंसिल नारायण रेड्डी ने आज कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का फैसला किया है। दिल्ली में कुल हिंद कांग्रेस के दफ्तर में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में वो शामिल हो गए। गुज़िश्ता हफ्ते नारायण रेड्डी ने बीआरएस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की थी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जानिब से ऐलान करदा 6 गारंटी स्कीमों से आवाम को जरूर फायदा पहुंचेगा, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया है। इत्तलात है कि असेंबली इंतखाबात में वो हल्का असेंबली कलवाकृति से मुकाबला करेंगे। उन्हीं के साथ साथ नागर कर्नूल जेडपी वाइस चेयरमैन बालाजी सिंह ने भी बीआरएस से रिश्ता तोड़ दिया और कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने गुस्से में गनमैन पर तमाचा रसीद कर दिया। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज अपने गनमैन पर तमाचा रसीद कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वजीर दाखिला आज हैदराबाद के अमीरपेट में वाक़े एक स्कूल में बच्चों को नाश्ता फराहम करने वाली स्कीम के इफ्तिताही तकरीब में शिरकत किए थे। बताया जाता है कि आज वजीर अफजाइश व मवेशिया श्रीनिवास यादव की सालगिरह तकरीब थी। इसी मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने श्रीनिवास यादव से मुलाकात करते हुए उनसे गले मिले और फूलों का गुलदस्ता पेश करने के लिए अपनी गनमैन से गुलदस्ता देने की हिदायत दी। ताहम उन गनमैन गाड़ी में ही गुलदस्ता छोड़ दिया, जिस पर बरहम वजीर दाखिला ने गनमैन को तमाचा रसीद कर दिया। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। ईरानी जहदकार नरगिस मोहम्मदी को अमन का नोबेल इनाम के लिए मुंतखब किया गया। नॉर्वे की नोबेल कमेटी ने 2023 का अमन का नोबेल इनाम ईरानी जहदकार नरगिस मोहम्मदी को ईरान में ख़वातीन पर होने वाले जबर के खिलाफ जद्दोजहद और सबके लिए इंसानी हुकूक और आज़ादी के फ़रोग के लिए उनकी जद्दोजहद पर देने का फैसला किया है। इस साल कमेटी को 351 नामजदगियाँ मौसूल हुई, जिनमें 259 अफराद और 92 तंजीमें यानी कि 92 तंजीमें शामिल थी, जिनमें नरगिस मोहम्मदी को अमन का नोबेल इनाम देने का फैसला किया गया। पिछले साल का इनाम यूक्रेन, बेलारूस और रूस से ताल्लुक रखने वाले इंसानी हुकूक के कारकुनों ने जीता था। ये इनाम अफराद या तंजीमों को दिया जाता है। दीगर साबिक़ फातिहीन में नेल्सन मंडेला, बराक ओबामा, मिखाइल गोर्बाचोव, आंग सान सूची और अक़वाम मुत्तहिदा शामिल हैं। सऊदी यूनिवर्सिटी ने सिनेमा और थिएटर्स में बैचलर डिग्री का आगाज किया। सऊदी अरब में आज से कुछ साल पहले तक सिनेमा थिएटर्स का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब न सिर्फ सैकड़ों थिएटर्स बन गए हैं, बल्कि अब तो यहाँ बॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग्स भी होने लगी है। कुछ अरसे पहले जिद्दा में फिल्म फेस्टिवल भी मुनक्किद किया गया था। इसी सिलसिले में अब एक और पेशरफ्त हुई है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में इमाम मोहम्मद बिन सऊद इस्लामी यूनिवर्सिटी ने एक नए शोबे की तश्कील के
हिस्से के तौर पर सिनेमा और थिएटर्स में बैचलर डिग्री का आगाज किया है। अरब न्यूज के मुताबिक सिनेमा और थिएटर्स का शोबा यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन का हिस्सा है। बैचलर की डिग्री तलबा को फिल्मसाजी और थिएटर्स के फन की तरबियत देगी और साथ ही इस बात को भी यकीनी बनाएगी कि इनका तैयार कुर्दा मवाद सऊदी रस्म रिवाज और सकाफत के मुताबिक होगा। अगरचे प्रोग्राम की तफसीलात का ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन तवक्को है कि कॉलेज से हिदायतकारी, फिल्मबंदी और स्क्रिप्ट राइटिंग के कोर्सेस पेश किए जाएंगे, जिन्हें अरब और बैनुल अक़वामी माहिरीन दोनों सिखाएंगे। हैदराबाद बंजारा हिल्स इंस्पेक्टर एसीबी के जाल में फंस गए। हैदराबाद शहर के बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो के हुकाम ने कार्रवाई की है। इंस्पेक्टर नरेंद्र पर इल्जाम है कि उन्होंने एक पब के मालिक से 3 लाख रुपए का रिश्वत का मुतालबा किया था और फिर पब के मालिक ने एसीबी के अहदेदारों को इस बात की इत्तला दे दी। आज एसीबी के हुकाम ने पुलिस स्टेशन और इंस्पेक्टर के घर पहुंचकर तफसीलात हासिल की और तनकीह की। जराए से मालूम हुआ कि रिश्वत की इस रकम को जब्त कर लिया गया। रिश्वत के इस मामले में बाज़ मातहत मुलाजमीन पुलिस के भी मुलव्वस होने का पता चला है। ताहम एसीबी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसी दौरान इंस्पेक्टर बंजारा हिल्स को खराबी सेहत की बिना पर हॉस्पिटल से रुजू भी किया गया। निजामाबाद में गाड़ियों की तलाशी के दौरान 5 लाख रुपये जब्त कर लिए गए। कमिश्नर पुलिस निजामाबाद वी सत्यनारायण के अहकामात के प्रॉन टाउन पुलिस स्टेशन की हुदूद में गंज कमान के पास गाड़ियों की तलाशी ली गई। इसी दौरान बगैर किसी दस्तावेजात के एक 2 व्हीलर से 5 लाख रुपये नकद जब्त कर लिए गए। बी वीरेंद्र नामी शख्स को गिरफ्तार करते हुए मजीद तफ्तीश के लिए टाउन 1 पुलिस स्टेशन के हवाले किया गया और जब्त शुदा रकम को IT अहदेदारों के हवाले किया गया। बीआरएस रुकने असेंबली रेखा नायक ने पार्टी से इस्तीफा पेश कर दिया। तेलंगाना की हुक्मरान जमात बीआरएस के रुकने असेंबली रेखा नायक ने पार्टी से इस्तीफा पेश कर दिया। बीआरएस पार्टी ने आने वाले असेंबली इंतखाबात में रेखा नायक को टिकट से महरूम कर दिया था। उनकी जगह किसी दूसरे को टिकट दे दिया गया। उस दिन से रेखा नायक पार्टी क़ियादत से नाराज थी। नाराज रेखा नायक ने पार्टी के खिलाफ बगावत शुरू कर दी और फिर उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने का भी ऐलान कर दिया। उनके शौहर चंद दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। आज इस्तीफे का ऐलान करने के बाद रेखा नायक ने आने वाले इंतखाबात में मुकाबला करने का अज़म जाहिर किया। समझा जाता है कि रेखा नायक बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगी। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।